روزے کا اہم ترین مقصد تقویٰ ہے، تو سب سے پہلے تقویٰ کے حوالے سے اس کا مفہوم اور اس پر روشنی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آج 8واں روزہ ہے، جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ساری گفتگو خوشخبری ہے اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے ہے اور ان کی روح کو تسکین دینے کے لیے، اور جو حضرات روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے اس میں ترغیب بھی ہے، سبق بھی ہے، درس بھی ہے کہ جو چھوٹ گئے تو بعد میں قضا کر لینا، تو ابھی رکھنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں جو رکھنا چاہ رہے ہیں، رکھ پا نہیں رہے، اللہ تو وہ اس پر جو افسوس کریں گے تو اللہ اس پر بھی اجر عطا کرے گا۔ جی بالکل۔ یعنی جب ہم دل کے اندر یہ بات لاتے ہیں کہ کاش میں یہ عبادت کر سکتا، جیسے بیمار لوگ ہیں تو یہ کاش بعض دفعہ بہت بڑے اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے کہ وہ بھی رکھیں۔ جیسے ایک بزرگ حج کر کے جب واپس لوٹے نا تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اور جیسے ہی ان کے چہرے کو اس نے دیکھا تو کہنے لگا آہ کاش میں بھی جاتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا یار میرا جو ثواب ہے نا حج کا وہ تو لے لے اور اس آہ کا ثواب مجھے دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، تو وہ بے بسی کی جو کیفیت ہے اور اس کے اندر یہ ادراک رکھنا کہ یہ عبادت مجھ سے نہ چھوٹتی، تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ بے شک۔ تو روزے کو اللہ نے جہاں فرض فرمایا اس کی استثنائی صورتوں کو بیان کیا، ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بے شک کہ اگر تم روزہ رکھتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا اگر تم اس کا علم رکھتے۔ دیکھیں انسانوں کو پیدا کرنے والے اللہ نے اور تمام علوم کو پیدا کرنے والے مالک نے روزے کی افادیت جو ہے اس کو اس صورت میں بیان فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو تو، اگر تمہیں ادراک ہو جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ حضور پاک کے فرمان کو اگر ہم ایڈ کریں تو مزید چیز واضح ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جاتا کہ روزے میں کیا ہے، رمضان میں کیا ہے، تو یہ اس بات کی خواہش کرتے کہ کاش پورا سال ہی روزے رہتے، پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اب اللہ کا فرمان کہ اگر ان کو علم ہوتا تو یہ اس کی خیر کو جان لیتے اور روزہ نہ چھوڑتے۔ نبی پاک کا فرمان کہ اگر ان کو علم ہوتا تو یہ پورا سال ہی روزوں کو رہنا جو ہے نا وہ پسند کرتے۔ تو دیکھیں یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے روح کو اپنے اصلی مقام سے آشنائی دلاتا ہے۔ جس طرح جسم اپنی فراوانی اور اچھی غذاؤں پر خوش ہوتا ہے تو روح بھی جو ہے وہ اپنے اصلی مقام سے خوش ہوتی ہے۔ اور روح جہاں سے آئی ہے وہاں غذائیں تو نہیں تھی، وہاں تو محبوب کا دیدار تھا، وہاں انوار تھے، وہاں پاکیزگی تھی، وہاں طہارت تھی، وہاں گناہ نہیں تھا۔ روح جہاں سے آئی ہے۔ اب جسم تو یہاں کی پیداوار ہے، یہاں یہ ساری چیزیں، اور یہی کے لیے ہے، یہی کے لیے ہے۔ اب روح جہاں سے آئی ہے اس کو کچھ ایسے لمحے چاہیے جو جیسے آپ سفر کر کے اگر امریکہ بھی چلے جائیں نا تو آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو آپ کو جو ہے وہ پاکستان کی آپ کے شہر کی باتیں بتائے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، یار میرے وطن کی باتیں بتا رہا ہے، وہ روح خوش ہوتی ہے، روح خوش ہوتی ہے۔ تو اب روح عالم بالا سے آئی ہے جہاں انوار ہی انوار تھے، اور ان انوار کا ذریعہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، پاکیزگی ہے، اور وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے روزے میں رکھی ہیں۔ اور روزے کے ساتھ میں تقوی جو ہے وہ ملنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں قرآن کی تلاوت آپ کو جو ہے نا وہ مل ہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، نگاہوں کو پاک کر لیتے ہیں، زبان سے بد کلامی اور برائی نہیں بولتے ہیں، غیبت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کی تسکین کا سامان کرتی ہیں۔ وہ حضرت مولانا روم نے بڑی خوب بات فرمائی تھی، کہا جانور جو ہوتا ہے، جانور وہ اپنی زبان کے ذریعے سے نشو و نما پاتا ہے، اور جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے کانوں اور روح کے ذریعے نشو و نما پاتا ہے۔ یعنی جتنی اچھی باتیں سنتا ہے، خوبصورت کلام سنتا ہے، تو اس کے اندر وہ چیزیں اس کو جو ہے نا وہ بڑھاتی ہیں، خوبصورت کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو روزہ ہے یہ تقوی کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ روحانی منازل طے کرواتا ہے جو آپ باقی کاموں کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش کریں
जो रोज़ा रख रहे हैं तो वो और अच्छे तरीके से इसकी जो शराइत हैं, इसके ज़वाबित हैं, उसका ख्याल रखें, जो नहीं रख रहे हैं वो रखना शुरू करें। वही आगे हम चलना चाह रहे हैं। अव्वलीन मकसद जो कुरान कह रहा है, और उससे बड़ा मकसद तो रोज़े का हो नहीं सकता, और वो तकवा है। अव्वलीन अल्टीमेट मकसद इसका यही है। रूहानी जिस्मानी फ़वाइद सारे उसके साथ साथ हैं, और अल्लाह के हर हुक्म में खैर ही खैर है। कैसे रखा जाए कि हम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को अता करना चाहता है, हम उसको उसके काबिल हो सकें, वो तकवा पा सकें, वो रूहानी जिस्मानी फ़वाइद पा सकें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम रोज़े के मकासद को जब देखते हैं तो हम सिर्फ़ एक मकसद को फोकस करते हैं, वो है लअल्लकुम तत्तकून। बेशक। जबकि इस रुकू को हम पढ़ें तो आगे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े के मकसद को बयान किया है। तो तकवा दर हकीकत, पहले तो थोड़ी सी मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि तकवा क्या है। जी। इस तकवे को हम कहते हैं कि खुदा आगही। मैं इसका तर्जुमा ये करता हूँ, खुदा आगही। खुदा आगही यानी कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, खुदा का शऊर, खुदा की आगही। वो इस तरह होती है कि जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने मामलात तय करते हैं, हम खलवत में हैं, जलवत में हैं, हम महफिल में हैं, दोस्तों में हैं, जहाँ पर भी हैं, कारोबार तिजारत करते हैं, तो वहाँ पर खुदा के एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये दर हकीकत तकवा है। और इसलिए कुरान पाक में तकवा तकरीबन हर दूसरे सफ़े पर आपको किसी न किसी सीगे में आपको ये नज़र आएगा। कहीं मुत्तकी, कहीं तकवा, और कहीं पर और किसी लफ्ज़ में इस्तेमाल होगा। तो इसका ताल्लुक़ जोड़ा जाता है समाज के साथ, माशरे के साथ। जी। तो खुदा आगही दर हकीकत यही है कि आप कभी ख़ुद को अकेला ना तसव्वुर करें कि आप ये समझें कि मैं अकेला हूँ, तो आप अकेले नहीं हैं। जी। अगर आप खलवत में हैं तो दूसरा आपके साथ खुदा है। बेशक। अगर दो हैं तो तीसरा खुदा है। बेशक। जब आप किसी इंसान के साथ भी मामला कर रहे हैं तो इस बात का यकीन रखें कि खुदा आपके साथ है। बेशक। ये जो एहसास है, और इसकी एक्सरसाइज रोज़ा करवाता है। जी। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हम जब घर में अकेले भी होते हैं तो हम कभी भी पानी नहीं पीते, कभी भी खाना नहीं खाते, और कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते। क्यों? हमें पता है कि भाई अल्लाह देख रहा है। ये एक जो प्रैक्टिस है ना हमारी कि अल्लाह देख रहा है, दर हकीकत तकवा यही है कि अल्लाह ये चाहता है कि जिस तरह आप रोज़े की हालत में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, आप बिल्कुल इसी तरीके से आप बाकी ज़िंदगी को भी उसी तरह गुजारें जब आपका रोज़ा नहीं होता। एक तो ये बात हो गई। कुरान पाक पे हम तकवा पे बात कर लेते हैं, लेकिन इससे आगे भी कुरान पाक कुछ बयान करता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि इसी मकाम पर ही, इसी रुकू में आगे जाकर, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े के हुक्म को बयान किया कि भाई जो इस महीने को पाता है तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे, मरीज़ है, सफ़र पर है तो उसको रुख्सत दी गई। फिर फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह ताला आसानी चाहता है तुम्हारे लिए जी, अल्लाह ताला तंगी नहीं चाहता। इससे आगे फरमाया कि वाली तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम इद्दत को यानी उसकी तादाद को पूरा करो। वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह के नाम को बुलंद करो ऊपर उसके जो उसने तुम्हें हिदायत दी। अल्लाहु अकबर। और आखिरी बात जो बयान की फरमाया वला अल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। वाह वाह वाह। तो ये कुरान पाक रोज़े के मकासद को इस तरह बयान करता है, यानी तकवा भी रोज़े का मकसद हो गया जी। और इसी तरह अल्लाह के नाम को बुलंद करना कि उसने इतनी बड़ी दौलत मुसलमानों को अता की, उसने हिदायत दी मुसलमानों को, और वला अल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अब वो शुक्रगुजारी जो इंसान के अंदर, मुसलमान के अंदर पैदा होती है, वो यही है कि जब खुद भूख बर्दाश्त करेगा तो दूसरी भूख का एहसास होगा, दूसरे की प्यास बर्दाश्त करेगा कि दूसरे की प्यास का एहसास होगा। दर हकीकत ये वो शुक्र है कि जो रोज़े के ज़रिए से एक मुसलमान की ज़ात में और उसकी शख्सियत में पैदा होता है। सही। अलामा साहब, जब हम लोग तकवा और परहेज़गारी का जिक्र कर रहे हैं तो वैसे में हमारी नफ्सियात पर भी इसका असरअंदाज होना हम देखते हैं। रोज़ा हमारी नफ्सियात पर किस तरह से असरअंदाज होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ पर इसके बदनी फ़वाइद हैं, जहाँ रूहानी फ़वाइद है, वहाँ पर नफ्सियाती फ़वाइद भी हैं। सबसे पहले नफ्सियात पे असर ऐसे होता है कि हम जो तुलुए फ़ज्र से ग़ुरूब आफ्ताब तक जिन चीज़ों से हम अवॉइड कर रहे होते हैं, परहेज़ कर रहे होते हैं,
उनमें वो चीज़ें हराम तो नहीं है, खाना हराम तो नहीं है, पीना हराम तो नहीं है, वो हलाल चीज़ें हैं। यानी हम अपने नफ्सियात पे इतना काबू पा लेते हैं, ख्वाहिशात को इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि जब हम हलाल चीज़ से परहेज़ करने पे आदी हो जाते हैं नफ्सियाती तौर पर, तो हराम से खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। ठीक। और इसी तरह कई और ऐसी आदत होती हैं कि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग कर रहे होते हैं, लेकिन रोज़े की वजह से वो अपनी ख्वाहिशात और नफ्सियात को इस तरह चलाने पे कादिर हो जाता है कि वो उसके बाद वो आदत या मुख्तलिफ तुरुक छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे बाज़ पान के आदी होते हैं, वो छोड़ देते हैं इसलिए कि उनकी नफ्सियात इस बात पे कंट्रोल कर लेती है कि नहीं वो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं। बाज़ लोग जैसे तंबाकू नोशी करते हैं, उनको भी इस कदर नफ्सियात पे कंट्रोल हो जाता है, अगर वो चाहे तो इस आदत से छुटकारा पा सकता है। तो इसलिए रोज़ा हमारी नफ्सियात को और ज़्यादा मजबूत करता है कि हम जो भी काम करना चाहें वो हमारी नफ्सियात पे हावी नहीं, बल्कि हम अपनी नफ्सियात पर हावी हो जाते हैं। सही। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोज़े के मुख्तलिफ फ़वाइद बयान किए हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये ज़हन नशीन रहना चाहिए कि रोज़ा एक इबादत है और इबादत की कबूलियत के लिए क़ुर्बतन इल्लल्लाह होना शर्त होता है, यानी मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोज़ा रख रहा हूँ। बाकी इसके जो फ़वाइद होते हैं वो सानवी हैसियत रखते हैं। अगर मैं सिर्फ ये रखूँ कि जो इसके चूँकि नफ्सियाती फ़वाइद है इसलिए मुझे रोज़ा रखना चाहिए, तो नहीं, इससे सानवी हैसियत रखना चाहिए। और देखिए फिर जैसे नफ्सियात के हवाले से है, एक तहकीक मैं पढ़ रहा था, वो अमेरिकन जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है उनकी है कि उन्होंने ये बयान किया कि जिन लोगों को नफ्सियाती तौर पे एक बीमारी होती है डिमेंशिया, उसमें अल्जाइमर है कि जिसमें इंसान की सोच या यादाश्त में कमी वाक़ई हो जाती है, कि जो इंसान रोज़ा रखता है फास्टिंग की वजह से उसकी इस बीमारी में कमी शुरू हो जाती है। अच्छा। यानी अल्लाह तबारक व तआला का एक सिस्टम है जो हमारी नफ्सियात पे, हमारी यादाश्त पे, हमारी सोच पर इस तरह असरअंदाज होता है कि जो डिमेंशिया का मरीज़ है, यानी ख़ासतौर पे जो अल्जाइमर है, अगर वो इसी चीज़ पे अमल पैरा हो जाए तो वो देखेगा उसकी नफ्सियात इतनी मजबूत हो गई कि वो सिर्फ फास्टिंग और रोज़ा रखने की वजह से खुद ब खुद इस बीमारी से बाहर निकलता चला आता है। इसमें क्या हिकमत है कि जो पिछली उम्मतों में तमाम अंबिया रोज़ा रखते, उनकी उम्मतें एक महीने में 3 रोज़े रखते थे जी, तो साल के वो भी 36 रोज़े हुए, 36। अच्छा, हमें 30 रोज़े हमें भी दिए गए, लेकिन एक ही माह दिया गया, तो मकसद रोज़े वो भी 36 रख रहे हैं, हम 30 रख रहे हैं। हिकमत क्या है कि जो एक साथ रमज़ान दिया गया कि 30 रोज़े इकट्ठे रखे जाएं? अब देखिए इसके अंदर अगर हिकमत, जैसे हमारा आज का टॉपिक भी था कि रोज़ा और साइंस, एक और तहकीक है, वो साइंसदान जिसे 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला था कि वो जापान का था। हाँ जी, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टोक्यो, वहाँ का प्रोफेसर के यूशिनोमी इशोमी, जी हाँ, जी हाँ, यानी उसने कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया। और हालांकि कोई उसने मेडिसिन नहीं दरियाफ्त की कि ये मेडिसिन खा लो तो तुम्हारे कैंसर का इलाज हो जाएगा। उसने कहा कैसे, वो फास्टिंग था। वो कितना कि कम से कम 20 से 27 दिन के दरमियान आप ये काम करो। अच्छा, जो आपने कहा कि 30 दिन ही रोजे अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज क्यों किए, वाह वाह वाह, वो कहता है कि 20 से 27 दिन आपने फास्टिंग करनी है, दवा नहीं है। उसने कहा इलाज कैसे है, वो ऐसे कि आपने फास्टिंग करनी है। वो कहता है कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ खुलिये होते हैं, जब उन्हें बाहर से ग़िज़ा नहीं मिलती उन खुलियों को परवान चढ़ाने के लिए, तो हमारे जिस्म के अंदर ही वो खुलिये जो पहले से नाकारा हो चुके होते हैं, या हमारे जिस्म के अंदर गले सड़े खुलिये होते हैं, सेल्स होते हैं, या खराब हो चुके होते हैं, कि फिर वो उन्हीं को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उसके जरिए इस बीमारी का इलाज हो रहा है।